Good evening. Today is 17th of Jan, Sunday, and it's correct 7 p.m. in the evening. So I thought to start recording on and off whether I should record or I should not record with the format I have. Precise content I will start once I have all the overviews, all the understanding about all the situations we are facing. So just collecting all the understanding towards the situations and creating a format, and once the data is ready I will easily explain the situations more in a theory form, that how our life is also like some theory which we can understand, some patterns, science behind it, maths behind it, the subjects we study, we understand, and this will help us to overcome our past life regrets and we had past life issues which is disturbing us in our present, not letting us to discover ourselves, carry ourselves towards our future. We can have a definitely bright future. Even we had scored not good or average marks in our past, in our exams, in our life, in what we have been through. We may be a failure, average person in school, college, job, but if our past decides right now in our present that is what you are, so let me tell you, that is not we are. We can be more achievable in our future. Once I explain you all the details and how our mind works, what are the constraints we feel in the middle of the people, why there are such situations, around us, that our heart is saying no, strongly say no, but the tongue says yes. That is the hurdle. The brain says, see, this will create problem for you because you know so and so person, and they may create problem to you, so it's better say yes, tackle the situation, just say yes, later on just see, manage it. This is what brain says, okay? But who is that no saying from inside? Your deeply heart, your body. Towards the other person, the feeling toward the other person, that is what the heart has, all the emotions. Even if we see scientifically, if you see, the heart is pumping blood in the rate
which is extremely high, and if you are against the gravitational force, or if you are standing, how much amount pressure the heart needs to pump blood towards the opposite side, that is towards the brain, because you're towards the opposite side of the gravity. And if your head is down, then you're near to the gravity, that means your head is on the land, that is. So I hope I'm clear, that is up and down. So the pressure towards down and the pressure towards up, that is the frequency, that is how much the heart works. And again, if you read ahead about the heart, when we breathe in and breathe out, that is what the heart does. Oxygen and carbon dioxide, the biggest part, such a big part heart does. Exchanging. Oxygen only goes to the blood and carbon dioxide should go outside. Try to understand my statement. Don't fall for my words, wrong words where I fall. You don't fall. I fall because there are some errors, but you understand the statement with the words, the emphasis, emphasizing on heart and the amount of pressure it holds. I have the raw content, though I may fall in speech. So I keep on repeating this because even my internal says this word was wrong. You have not emphasized it correctly. The word you have not emphasized correctly. This is the two statements I said. Why? Because the same brain is emphasizing so much that I should speak correctly. The statement is incomplete. Complete the statement. I repeat twice. Others are not able to understand. They will judge you. Your language is not correct. But how much pressure the brain is bringing to the heart in this run? Where is my soul in the conflict? What is the association, amalgamation, or when two things act together, what we say? Whether they are cooperating each other or not. But my statements proves there is some conflict in between when something drops. When we breathe so much, while speaking words, we feel breathless. If we can hear our own breath, the time is that we hear ourselves, that our heart needs some peace. We may be speaking much. We need to pause in our speech. We may be yearning so much that we need to have the pause from the sound pollution. The second statement is for whom? The person who will say, no, I don't have any talking issue.
I'm not very talkative. That means I'm not very talkative. That means you're listening so much. There are always number of reasons. The person sitting can give you one example, but you as a person know. From one example, if you can relate that no, this is not correct. I am feeling breathless because of so and so reason. That means you know the reason. And if you take pause, try to attend the reason, correct that reason, remove the reason. And if your breathlessness goes, that means you had a correct scanning of yourself. You know yourself much. But even if you think and you tried hard to remove the reasons, but still you still have the same breathlessness. That means there is some other checkup. Your internal scanning is required. So now internal scanning is what? Internal scanning is like doctor says, first you admire yourself. Admire is you give yourself a thought. Or the simple words I can say is just see what you did whole day, what you had whole day, which food you had. Then you can conclude, okay, so and so is the reason, and because of so and so things I am having health issue. So this is what doctor states. If you are allergic to something, so that same reason you can easily take to different thing. That you check, just see your whole day, just check your pattern. I will shift to the word schedule. Just see your schedule in the whole day, understand it. Next day, try to change your schedule. If you change your schedule and you have little less of worries, breathlessness, less stress, everything less. So your schedule needs to be changed. Usually our schedule is much about our long working hours, working hours which are always extended. And that is not once, that is like in 1 week, it's around or all 7 days or all 6 days. Depends, because we are extending, even we are taking into consideration of Sunday also we work. If we are working, if we are a job, we have taken a job. So how much we have? The law states that we have the rules that we should not work for 8 hours. But it's always the work demands that we have to complete tasks, meet the deadlines. For that we sit for long hours. The work is more, though the timings are less. Sometimes we skip our lunch. We don't have lunch same day, same time every day. We skip in a day, and that becomes a habit. So that schedule, if you see only your lunch schedule for 1 week, this is called pattern. So just check the pattern, what time I'm having my lunch. I'm not skipping it. I'm not making a habit, right? Because the work can wait for few minutes. I can have at least 1 chapati.
something I can have. Otherwise, what will happen, that we will make a habit. आज एक दिन तो कर दिया, लेकिन फिर धीरे धीरे ये हो जाएगा कि आज कर लो, बाद में खाना खा लेना. खुशी में हम कर देते, चलो आज कर देते हैं, लेकिन आज खुशी में कर दिया, कल गुस्से में नहीं करेंगे. चाहे वर्क कितना भी डिमांड करे कि अभी मुझे 5 मिनट में ये काम भेज दो, लेकिन हम लोग नहीं करेंगे, बिकॉज जब तक हम लोग बहुत गुस्से में होंगे कि ये तो कंपनी का रोज का काम हो गया, लंच टाइम में ये लोग परेशान कर रहे हैं. सो समवेयर वी स्टार्टेड इट. आई हैव सीन द वर्क पैटर्न इन एशिया. This is called pattern. So work pattern in Asia is so much that literally the world started calling us labor. Just give them money and they will work like laborers. I have heard. And we have proven by going into countries, different countries, if we get money more than what our Indian company pays here in India, we go to that country and we work for long hours for money. And that time we say that is like was our requirement. So I will say that the need, want, requirement can be adjusted. I may be requiring more, or I may be promising to my family that I will construct, I will have good savings, I will earn and come back in this many years. That's why we go to return as earliest as possible. But don't say that was your requirement, that's why you went there. You went for the search of money in other country because they were paying you high than the Indian companies. You could have stayed here, you could have stayed back, enjoyed your family life with your family in the money they would have given you, and just forgotten the other country. Now when you will say, then you will say it's a need because you are here, you are working here, but that requirement where they are paying you high, but you stayed back here with your family, now you will say my need is I have to go there. Again, तो इंसान का जो हालत हो गया है ना, वो यही हो गया. जो जोक्स अभी चल रहे ट्रेंड पे, हम सुनेंगे ना तो वही लगता है. पैसे के ऊपर कि यहाँ रखे हुए पैसे और वहां रखे हुए इस पैसे को हटा के उधर रख दो तो वो वाले पैसे चाहिए. सम जोक इज लाइक दैट अबाउट मनी. जब याद करने जाओ तो जोक्स भी याद नहीं आते हैं. सो विद दिस आई रिमेम्बर अगेन वन वीडियो अबाउट यूपीएससी रैंक होल्डर. आई डोंट रिमेम्बर. उनको पूछा गया कि आप एक जोक बताओ. अब वो जोक तो उसमें से कट हो गया था, बट एंड में जब इंटरव्यूअर ने उनको सब बताया तो उससे पता चला कि शायद जोक सही नहीं बताया लड़के ने. आई थिंक इट हैड सम स्लैंग्स इन इट. तो उन्होंने जब लड़के को जब ही मार्क्स दे रहे थे, ही वॉज द यंगेस्ट, तो उसको जब मार्क्स दे रहे थे उनको बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने जो जोक कहा उसमें ऐसे वर्ड्स थे तो जो आपको यूज नहीं करने चाहिए इंटरव्यू में. अब उस लड़के ने कहा कि सर मुझे जोक याद ही नहीं आया. तो उन्होंने यही कहा कि इंटरव्यू इज ऑल अबाउट दिस. नोबडी इज गोइंग टू टेल यू व्हाट
वी विल आस्क यू इन इंटरव्यू। अगर हमने आपको पहले ही बताया था होता कि जोक याद करके आओ, तो आप तो पहले से ही रेडी रहते। तो मेरा अभी वही हाल है कि मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, बट आई डोंट रिमेम्बर, आई सिंपली स्पीक आउट, सो दैट स्टेट्स हाउ मच प्रिपेयर्ड आई एम इन द फ्रंट। जो मुझे आ रहा है वही मैं कह रही हूँ। तो जो वर्ड्स एज इट इज अगर मैंने सुने भी है, एज इट इज मैं नहीं बता पाती हूँ, नहीं कहती हूँ। फ्यू लाइन्स आई स्पीक अबाउट कि मैंने सुना है। टू गिव सम सपोर्टिंग टू माई वीडियो, एज इट इज मैं क्यों बताऊं वो जोक। और दूसरी बात, मैंने आपको उससे रिलेटेड इंसिडेंट भी बता दिया। तीसरी बात, मैंने एडमिट भी कर लिया कि मुझे जोक याद नहीं है। चौथी बात की नहीं याद है, फिर भी मैं इस बारे में बात कर रही हूँ और फिर ये कह रही हूँ जो मैंने अभी तक कहा। तो ये सब क्या हो रहा है? दिस इज आवर पैटर्न। आइदर वी एडमिट or let it go. And if we admit, how much we admit it, whether we know or we don't know. And if we don't know, how much we admit that we don't know. So how much we don't know, we always have the answer. मुझे इस वजह से याद नहीं है। ये तो मैं अकेले में वीडियो बना रही हूँ, इसके लिए शायद मैं इतना अपने आप से बात करके करेजियसली बता रही हूँ, लेकिन फिर यही बात हम दूसरों को नहीं कह पाएंगे ना कि मैं भूल गई। दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ करेज टू एडमिट। इट्स नॉट अबाउट रॉन्ग or being wrong. This is totally unintentional, but you have to speak about certain thing, or you have to remember certain thing, but you have forgotten. Then it requires admittance. सामने वाले ने पूछा कि देखो तुमसे ये रह गया है या ये किसने गलती की, तो उस वक्त हम क्या कहते हैं? क्या मैं कहूंगी कि मुझसे गलती होगी, मतलब मैं भूल गई, तो सामने वाला ये कहेगा तुमसे गलती हुई है, लेकिन मैं भूल गई, इसमें मेरी क्या गलती है? ये बात मुझे समझानी है सबको। सो टेस्ट इज अबाउट मेमोरी एंड डेली वी हैव टेस्ट। हम जो चीज भूल जाते हैं, अगर जिसे हम भूलना नहीं चाहिए लेकिन भूल गए गलती से, लेकिन उस गलती में कितना रॉन्ग है? मेरे भूल जाने से कुछ गलत हो सकता है, लेकिन मेरा भूल जाना गलत नहीं था, यानी मैंने जानबूझकर ये नहीं किया। So that was little just to sound little rhymey, poetic. या शब्दों को आप कैसे खेल सकते हो, वैसा स्टेटमेंट बनाया है। और 23 मिनट्स के बाद फोन मेरा थोड़ा हिलने लग जाता है, बिकॉज हाथ में फोन पकड़ते हैं ना। तो सो सक्सेसफुली आई स्पीक 23 मिनट्स यहाँ वहां का। दिस इज कॉल्ड यहाँ वहां की बातें। अभी आप लोग बताइए, दिस इज इट गॉसिप और अ टीचिंग? सो समटाइम्स वी स्पीक दिस ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो गाइडेंस। लेकिन यहाँ वहां की बातें जिसे सीख के तौर पे, गाइडेंस के तौर पे हम समझ सकते हैं। हम शेड्यूल को इम्प्रूव करने के लिए एक दूसरे से जो बातें करते हैं। So don't consider everything as gossip. दो लोग आपस में अकेले में बात कर रहे हैं, तो don't forward statements for them to other people that they are gossiping. ये ऑफिस पॉलिटिक्स या फिर शिप पे जो पॉलिटिक्स होते हैं ना, जितने भी पॉलिटिक्स मैंने देखे हैं,
ये बहुत बुरे होते हैं। पॉलिटिक्स यानी आप समझ जाइए, जैसे अगर ऑफिस पॉलिटिक्स वर्ड आप रिलेट करेंगे तो वो पॉलिटिक्स, आपस में एक दूसरे से डिवाइडेड रहना, बट एक दूसरे के चेहरे पे दिखाना कि हम लोग आपसे बहुत फ्रेंडली है। तो ये चीजें एक पैटर्न क्रिएट कर रही है। मीन्स इनसाइड यू हैव हेट्रेड, बट आउटसाइड आप नो नहीं बोलते उन्हें, आप बता रहे हैं कि ठीक है चलेगा, वी आर सो फ्रेंडली, दे आर माई कलीग, दे हम लोग के फैमिली जैसे हैं, हमारे फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन अंदर से कोस रहे होंगे, उन्हीं की बुराई दूसरों से कर रहे होंगे। दिस इज कॉल्ड ऑफिस पॉलिटिक्स। और उन लोगों को आगे प्रमोशन मिलने में रुकावटें डाल रहे होंगे, उनकी बुराई आप सीनियर से कर रहे होंगे, हर बार उनके नुक्स निकाल के सीनियर्स को दिखाते होंगे कि ये देखो मिस्टेक कर रहे हैं। डायरेक्ट एक मिस्टेक पे डायरेक्ट सीनियर के पास चले गए दिखाने के लिए कि देखो ये मिस्टेक कर रहे हैं। तो आप फिर क्या हो? अगर आप सिचुएशन हैंडल ही नहीं कर पा रहे हो और आप चीजें ऐसी दूसरों का सिर्फ फॉरवर्ड करके अपने सीनियर को बता देते हो, तो फिर ये चीजें आपके लिए भी होगी कि देखो इनमें कितना बचपना है, अभी तक इनमें मैच्योरिटी नहीं आई, अंदर जाके क्या बुराई कर रहे हो। जो बातें यहीं पे कर लो ना। और गलती तो सबसे होती है, गलती इंसान जानबूझकर नहीं करता है। ऑफिस में जो गलती होती है, पेपर वर्क में जो गलती होती है, वो जानबूझ के नहीं करता है, उससे हो जाता है। उसने क्या देखा, क्या समझा, और फिर उसने क्या टाइप किया, उसके बीच में कई सैलाब आके चले गए होंगे उस इंसान पे। So everybody has issues, understand? For a single error, don't blame them. Error which can be corrected and controlled. Few errors which can have harsh effect in front of the authorities. Immediately try to check solution for it. Get another paperwork and send email to them. So and so number was wrong. The passport number was wrongly mentioned in the letter. We always have standard formats of the letter. Give to the airport because they need all the accurate data as it is. Even we type it accurately, but sometimes the digits go here and there. पासपोर्ट नंबर गलत हो गया, फ्लाइट नंबर गलत हो गया। तो हम लोगों ने शिपिंग कंपनी में देखा है कितना कितना पेपर वर्क हम लोग करते हैं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाता है। तब ऐसा लगता है क्या करे, बिकॉज अगर देखिए एक सीमैन अगर जाता है ना तो समझ सकते हैं कि एक बनाना है, लेकिन अगर टेक ओवर होता है वेसल का और बहुत सारे सीमैन एक साथ जाते हैं तो उनके नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, उनके नंबर ऑफ पेपर वर्क्स, देन एयरपोर्ट पे जो पेपर वर्क लगता है वो, और वीजा, मतलब कितना भी कोशिश कर लो ना कहीं मतलब गड़बड़ हो ही जाती है। तो ये सब देखा है मैंने कि यार इतना डेटा एक इंसान अपने दो आंखों से देख के कंप्यूटर में दूसरे इंसान को दूसरी जगह भेज रहा है, फिर भी अनइंटेंशनली गड़बड़ हो जाती है। बिकॉज इफ द नंबर इंक्रीजेस, द नंबर ऑफ एरर्स कैन राइज। सो देयर यू रिक्वायर अ सपोर्ट फ्रॉम द अदर पर्सन। दे विल हेल्प यू, बट इफ दे हैव सम अदर वर्क, क्योंकि मैं नंबर ऑफ वेसल्स देखती थी तो मैं बोल देती थी कि प्लीज मुझे एक बार, आई नीड समवन हु should have the second look. We need somebody who can दूसरी बार एक चेक कर ले कि करेक्ट है क्या। अभी भी अकाउंटेंसी में भी ऐसे ही होते हैं, मतलब एक ने कितना भी डाल दिया लेकिन दूसरा जो है हमेशा उसको रीचेकिंग कहते हैं ना। मेरे पास ही रीचेकिंग के लिए कितना समय है नहीं रहता,
लेकिन दूसरा इंसान टाइम बचाने के लिए रीचेकिंग करके मुझे सेव कर सकता है। कैसे? क्योंकि एक सिंगल एरर से वो लोग एयरपोर्ट पे स्टक हो जाते हैं। ये सब देखा है मैंने। सो आई गॉट अ पॉज नाउ। तो मैं इसीलिए बता रही थी बिकॉज एरर और स्टार्टिंग से जो बातें बता रही थी अनइंटेंशनल, बट दैट इज लाइक शॉक ऑफ लाइफ because you are held responsible, you have signed the paper, and a single error and the insult you can't take from others because that error has created a very big impact. The person, मतलब एक बार ऐसे भी हो गया कि चलो सब सही ही होगा, but visa got expired on the arrival in the country. That was not calculated. So the mathematical calculation was on shortfall because already the person was not getting visa, Saudi visa, and it is valid for 14-15 days. By the time we had the visa in hand, that was already 12th or 13th day. Because see the situation was the person came, the सीमैन आया कहीं से, उसको आने में भी टाइम लगा, उन लोगों को कन्विंस करना होता है, वो गांव से आते हैं, आप हमको एक दिन पहले बुलाना, 2 दिन पहले बुलाना, ज्यादा दिन पहले मत बुलाना, जब तक यहाँ से वीजा आना चाहिए, फिर टिकट आना चाहिए, फिर वहां से एजेंट भी रेडी होना चाहिए, और वेसल हमेशा फ्राइडे को ही उधर आता है, एंड दे स्टार्ट बम्बार्डिंग, फ्राइडे को आप लोग भेज रहे हो, फ्राइडे को। अरे हम लोग फ्राइडे को कैसे भेजेंगे? जहाज ही फ्राइडे को आ रहे हैं, आप लोग नहीं समझते हो। फिर उसके बाद हम लोग को रविवार को काम करना होता है। तो मेरा इतना बड़ा एग्जाम्पल है कि मैं आप लोगों को प्रूव कर रही हूँ कि मैंने जॉब किया है और हर्डल्स कितने थे। और ऐसा नहीं कि मैंने एरर नहीं किया है, मैंने इतने लॉन्ग आवर्स काम किया है, लेकिन it's a not thanksgiving job. At the end we hear this only after working for so many years. They say this field is as such, nobody is going to thank you. I thought if nobody is appreciating the amount of hard work you did, always had in mind I don't have to commit a single mistake. Not a single error is allowed, even by law. He cannot fly, he'll be jailed. The number of penalties, the not so understanding nature, or corruption, so much I have seen. मेरे दिल से सिर्फ हाई निकली है। मैंने इतना साल जब काम किया है ना, तो आई प्रे टू लॉर्ड कि सब ऑयल कंपनीज बंद हो जाए, ये सारे ऑयल कंपनीज बंद हो जाएंगे और हमारी सबकी गाड़ियां पानी पे चलेगी। दिस इज माई फोरकास्ट बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ प्रेशर एंड सो मच ऑफ बिजनेस बिहाइंड इट, and you cannot commit mistake. और हम लोग we are held responsible, the innocent people who have learned, who have trained, but human mind is not controlled, cannot be controlled. Error happens, technical errors if we accept, by nature it happens. So why not my technical or my error consider is a technical error by nature happened, rather than just concluding you make mistakes. So I spoke about just a phase in so short, but the amount of sacrifices I have done,
behind it. My health, my kids' health, my family life. So there will be people who will say, then you enjoy family life, why you want to be in the company and take stress? So let me tell you, sir, everybody wants to earn money for living. Don't simply make statements because you have progressed and reached to a level. Don't underestimate a person who is striving hard to reach to success. And I don't know who is that sir I'm speaking to. But see, in this competitive field, I have seen that all are captains. So captains are the males. Till the females reach, I am out of that field. And my blessing is not with any oil or shipping company anymore. I will say that even I am part of a human life on planet. So एक blessing कम हो गया. Shipping companies, oil companies, listen. And if my blessing really counts, so I pray to Lord कि such stress has to be removed, or people accept few errors, accept amendments, because there are so many big things happening. They do amendments in it. Why this field doesn't accept amendments and they want hefty fines, asking for monies? Why this corruption is not seen? With so much lot of corruption, the bad karmas hold you. You won't have any money anymore. The amount of money they have made, the amount of answers you will have to give one day to God. Why this corruption? Not a single country will be spared, because God is one and you have to answer to Lord, to God. And don't think हम इस रिलीजन के, हम उस रिलीजन के, तो हमको जवाब नहीं देना होगा. जिन्होंने जानबूझकर गलतियां की है उन्हें जवाब तो देना ही है. पैसों के लिए दूसरों को दिक्कतें दी है, उनको जवाब देना है. बैड पर्सन जवाब देना ही है. पैसों के लिए दूसरों को इतना रुलाया है, जवाब तो देना ही है. एक पेपर वर्क के लिए इतना तकलीफ दिया है, जवाब तो देना ही है. आप लोग कौन से हूर हो जिन्होंने कभी कोई गलतियां नहीं की? तो अगर आप दूध के धुले हैं, आप लोगों ने गलतियां की ही नहीं है, तब उन लोगों से जवाब मांगिए ना कि आप इतना एरर कर रहे हो और फाइन भरो इसके बारे में. लेकिन दो लोगों के बीच में याद रखना, एक सीमैन की बहुत दिक्कत होती है. I hope they find new job. अपने ऑफिसेज में जो चल रहा है, जहाज पे जो चल रहा है, डिफरेंट पॉलिटिक्स, लेकिन कहीं ना कहीं इंसानियत खत्म होती जा रही है और सब पैसे का ही खेल लगता है कि पैसा कमाने के लिए लोगों ने क्या अच्छाई की है, पैसा कमाने के लिए क्या बुराई की है, पैसा किस हद तक कमाने के लिए कितनी बुराई की है. ये सारी बातें तो मैं आपको और बताऊंगी. और कौन कौन से जरिए से पैसा उन लोगों ने कमाया इतनी बुराई से, और कौन कौन से जरिए से पैसा कमाए अच्छाई से, लेकिन दैट वॉज अनरिकॉर्डेड with bad intention.
ओनली गॉड कैन टेल यू कि जो अच्छे बनकर दूसरों को दिखा रहे हैं कि हमने मदद किया, हम ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, लेकिन उनके पीछे क्या भावना है, ये जवाब तो आप भगवान को ही देंगे ना। हम इंसान को नहीं पता है, हम सोचेंगे आप तो अच्छे हो, लेकिन आपके अंदर बुराई तो उन्होंने बता दी कि आप दूसरों की सेवा इसीलिए कर रहे थे क्योंकि आपको तो उनका पैसा चाहिए था, उनकी संपत्ति चाहिए थी। ये बातें भगवान स्वयं बताएंगे। और आप ये मत सोचिए कि भगवान नहीं है। इतने समय से हमेशा हर जगह से सब इंडिकेशन आ रहे हैं। 2020 सबसे बड़ा गवाह है पापों का, हिसाब किताब का। अब 21 में सुधर जाइए। So one is like if you remember and other if you don't remember. If you remember and do things correctly, अच्छाई के लिए, भलाई के लिए, ये बात अलग है। इफ यू डोंट रिमेम्बर कि अच्छाई के लिए क्या करना है, बुराई के लिए क्या करना है, लोगों के लिए क्या करना है, वो कितना पाप है, इसको भूलना कहते हैं ना। तो हम अगर ये भूल गए कि कौन सा चीज कितना बुरा है, तो ये नहीं भूलना है, इसलिए याद रखिए। अगर जितने अच्छे लोग हैं उससे हम सीख सकते हैं, तो उनकी अच्छाई देखिए, ना कि उनमें खामियां निकालिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जितने अच्छे अच्छे कदम रखे हैं, जितने हमारे देश को आगे ले जाने में मदद की है देश की, आज दुनिया भर में लोग जानते हैं उन्हें और हमें, इस देश को। उनकी उस अच्छाई को याद करिए और एक ही पल में कहीं पर भी उनकी बुराई मत करने लगिए कि उनकी 10 अच्छाई कम लगने लगती है आपको, और एक ही बात इतनी बड़ी लगती है कि आप उनमें बुराइयां ढूंढते हैं। और पर्सनल लाइफ कहीं पे भी नहीं उछालना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है चाहे वो बॉलीवुड हो या पॉलिटिक्स हो, सबका एक पर्सनल लाइफ होता है। हम लोग कॉमन पीपल, हम लोग आप लोगों को देखते हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ कोई किसी का उछलता हुआ नहीं देखना चाहते। हम सब इंसान हैं, हम सब एक दूसरे के परिवारजनों के बारे में सुनना पसंद नहीं करेंगे। तो ये मत कहिए कि यहाँ अगर जब तक आप कॉमन सिटीजन हो तो आपका पर्सनल लाइफ पर्सनल है, लेकिन एक बार आप सोशल ग्रुप में आ गए तो आपका पर्सनल लाइफ पर्सनल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे घर के दरवाजे हम लोग खुले रखेंगे आपको दिखाने के लिए। पर्सनल लाइफ वही होता है, बंद दरवाजे के पीछे की सच्चाई वो इंसान ही जानता है, उसे ही जानने का हक है, क्योंकि वो वहां रहता है, वो उसका परिवार है। उसके बाद वो अपने भगवान को क्या बताता है, उसकी क्या सच्चाई है उस घर में, उसका अपने परिवार के साथ कितना तनाव है, क्या लिखा झुका है उस घर में उसका, वो और उनके भगवान जानते हैं। लेकिन दूसरे लोगों को कोई हक नहीं है जो उस घर का दरवाजा लांघ कर नहीं जा सकते, ना ही अपने शब्दों से, ना ही अपने कदमों से। अपने कदम हमारे पैर ही नहीं होते, हमारे कदम हमारी सोच भी होती है। हम कितना सोच के कदम आगे बढ़ाते हैं। दूसरों की इज्जत मत उछालिए। ये तो पुरानी बात है कि जो मेरे साथ हुआ है वो आपके साथ भी होगा, जो मैंने आपके साथ किया है कल को घूम के मेरे पास ही आएगा। दैट इज लॉ ऑफ फिजिक्स, वी नो। इफ यू फॉरगॉट then that is your issue. Law of physics states what goes around comes around. The harder you hit the ball,
the faster it returns to you. And the force is very high. The hit you will get na is very high. That impact is very high. तो एक इंसान 10 लोग के बीच में किसी और की बुराई कर रहा है मीडिया में और उनकी पर्सनल लाइफ उछाल रहा है, तो कल 100 लोग आपके अगेंस्ट खड़े होंगे और आपका क्या क्या उछालेंगे आप समझ जाइए मीडिया में. एंड गॉड फॉरबिड वही सारे लोग ना हो, मतलब आपका लाइफ तो हेल हो जाएगा, आमना सामना हो जाएगा. फिर वही रिपोर्टर आपके सामने खड़ा है कि कल तो आप इनकी बुराई कर रहे थे, आज आपके ऊपर आ रहे हैं. तो ऐसा आपके साथ ना हो. हर शब्द तोल मोल कर बोलिए. आप पॉलिटिक्स में हैं या नहीं हैं, लेकिन आप पहले इंसान हैं और आपको हमेशा सिखाया गया है. मैंने अपने हर वीडियो में कहा है, अगर आप भूल गए हैं तो बेसिक बुक में से सीखिए. कौन से बुक्स आपको पढ़ने हैं ये भी आप खुद समझिए, क्योंकि आप तो ज्ञानी हैं. और ज्ञान अगर इस मामले में कम है तो स्कूल के बुक्स उठाइए, सीएल के बुक्स. कम्युनिटी लिविंग हम लोग कहते थे बचपन में, अब कुछ दूसरा होगा. मैनर के ऊपर देखिए, अपने ग्रंथों से सीख लीजिए. आपका दिल क्या कहता है, क्या अच्छा और क्या सच्चा बात है. क्या यही बात मैं अपने पेरेंट्स को कहूंगा? एक बार ट्राई करिए कि आप जो बात मैं ये दूसरों के लिए कह रहा हूं ना, पिताजी आप मेरे लिए कहिए. सेम बात, द सेम स्टेटमेंट यू टेल योर फैमिली टू टेल यू. मिरर में देखिए फिर अपने आप को, आपको पता चल जाएगा कि अच्छा है. किताब नहीं पढ़नी है तो खुद अपना बॉडी रिएक्ट करता है. जो चीज मुझे बुरी लग रही है आज दूसरों से सुन के, अपनों से सुन के, ये बात मैं उन लोगों से कहूंगा, उनको कितनी बुरी लगेगी. अगर ये बात मुझे मैटर नहीं करता है तो आपसे करना सीख लीजिए. ये स्टेटमेंट जो आपके अंदर से जो भाव आ रहे हैं, दूसरों के प्रति घृणा आपको दिला रहा है, वो आपका खुद का दुश्मन है. दूसरों के प्रति जो शब्द निकलते हैं वो शब्द आपके ही दुश्मन है. ये तो सबने बताया है. दूसरों के लिए क्रोध रखना यानी खुद अपने अंदर जहर होल्ड करके रखना, ये तो बताया गया है ना. तो हमें कौन बनना है जो किसी के लिए घृणा ना रखे, फिर भी सीधे सरल रहकर हम दूसरों को अच्छी सीख सिखा लें. ना कि क्रोध रख के हम सोचे कि जब तक हमारी आवाज तेज नहीं होगी, सामने वाले को 4 बातें नहीं सुनाएंगे, उसका कैरेक्टर नीचे नहीं गिराएंगे, तब तक वो सुधरेगा नहीं. तो सुधरने का मतलब अगर वो होता है तो आप बिगड़ रहे हो. उसको सीधा कर लोगे, आप टेढ़ा हो जाओगे. ठीक है, मेरा वीडियो बहुत बड़ा हो गया ऑलरेडी और बीप्स आ रहे हैं, तो आई एंड अप दिस वीडियो. तो आज का वीडियो होप सो समझ में आ जाए. आई एंड दिस वीडियो.